Hello, friends. Today our topic is self-help groups from agricultural marketing and agricultural area development relating to the banks and commercial banks and cooperative banks. We have this particular topic which is spread across many chapters, which is very important from exam point of view. That is self-help groups. So let us see what is self-help groups in the context of rural marketing and how they contribute to rural development. This is the main agenda of today's lecture. So let us first do with the concept of SHG. That is, whensoever we talk about, we mention this particular abbreviation SHG. It is self-help groups. So the concept of self-help group services, the principle is uh, by the woman, of the woman, and for the woman. Now, this is the facility, or this is the service, or this is the paradigm which is related to women only. So it is the for it is meant for the woman, it is created by the woman, and it belongs to women. So in rural areas, of course, why we see more relevance of SHG, that also we are going to discuss in this particular slides. Self-help groups are voluntary association of people with common interest formed to achieve collective social and economic goals. So, to consider the nature and the characteristics of self-help groups, what we will realize that it is voluntary association. ये कोई कंपलसरी एसोसिएशन नहीं है, ये एक तरह से वॉलंटरीली लोग साथ में मिलते हैं, उनका एक कॉमन मकसद होता है फंड क्रिएट करना और उसमें से बिजनेस चलाना, और इसके वजह से उनके सोशल और इकोनॉमिक गोल्स जो हैं वो अचीव होते हैं. तो सच ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज फॉर म्यूचुअल हेल्प एंड बेनिफिट. ये क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ये क्रिएट किए जाते हैं फॉर म्यूचुअली सपोर्टिंग वन अनदर, और ये डेमोक्रेटिकली, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, विदाउट एनी रूल्स, वोटिंग, नॉमिनेशन, इसके बिना सब तय किया जाता है इसमें. तो it is democratic form of association of women who comes voluntarily to create some fund, and then they generate that fund for social achieving social and economic goals. They may comprise of 50 to 20 women or men, although they generally consist exclusively for women members. सो महिला बचत गट इसको कहते हैं, और महिला बचत गट की एक ही खासियत है कि एक्सक्लूसिवली इट इज बीन डन एक्चुअली फॉर्म बाय वुमेन, सो वुमेन पार्टिसिपेंट्स यू विल ऑब्जर्व मोर. In India, more than 90% groups are formed by women, and it is done at micro और group level only. छोटे से लेवल पे ये विलेजेस में फॉर्म होता है, खासकर सबर्ब्स में भी होता है महिला बचत गट. The initial operations of SHG start with collecting saving from members. इसका मेन जो मोडस ऑपरेंडी है, मतलब इसका मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि वुमेन वॉलंटरीली अपने पैसे जमा करते हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू. तो जो भी मेंबर्स इस ग्रुप के बनते हैं वो सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं. These group inculcate the habit of thrift among the members. ये ग्रुप एक तरह से क्या करते हैं, हैबिट ऑफ सेविंग एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स अमंग द मेंबर्स को इंकलकेट करते हैं. बाय कलेक्टिंग स्मॉल सेविंग ह्यूज अमाउंट कैन बी रेज. छोटे छोटे सेविंग्स अलग अलग वुमेन के एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं, जैसे चिट फंड्स में होता है. दीज ग्रुप्स एडवांस लोन्स टू नीडी मेंबर्स, और इस हिसाब से जब ये लोग हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट कलेक्टिवली लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एज अ लोन भी मिलता है टू नीडी मेंबर्स. जो औरतें बिजनेस अपना करती हैं या स्मॉल स्केल पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं या रूरल मार्केटिंग में उन्हें कुछ बिजनेस क्रिएट करना है. The total funds owned by the group are thus circulated in the form of loan among the members. इसके लिए जितना भी इकट्ठा किया जाता है पैसा, ग्रुप उसको ओन करता है और वो सर्कुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ लोन अमंग द मेंबर्स.
अब इसका रेलेवेंस क्या है, एसएचजी कैसे कैसे काम करता है और कैसे कैसे वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रहा है रूरल एरियाज में, वो देख लेते हैं। तो सेल्फ हेल्प group supplemented with mutual help can be a powerful vehicle for the poor in the socio-economic development. So एक तरह से ये एक पावरफुल व्हीकल है फॉर पुअर in the socio-economic in the development of the rural areas. And participative financial services management is more responsive and efficient. और क्योंकि इसमें सब लोग मिलके फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं या फाइनेंशियली जो लोन्स सर्कुलेट होते हैं या जो सेविंग्स एक्यूमुलेट होती है, वो एक तरह से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऑर्डर के लिए, रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए यूटिलाइज होती है और वो एफिशिएंट हो जाता है उसका वर्किंग। पुअर नीड नॉट ओनली क्रेडिट सपोर्ट, दे डोंट नीड ओनली क्रेडिट सपोर्ट बट ऑल्सो सेविंग्स एंड अदर सर्विसेज। जैसे रूरल पुअर्स है, उनकी अगर बात करें तो उन्हें सिर्फ लैंडिंग लोन सपोर्ट सिस्टम ही नहीं चाहिए, बट उनको उनके अंदर वो हैबिट होनी चाहिए कि वो सेविंग्स कर पाएं और अदर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनका फायदा उठा पाएं। Poor can save and are bankable, and SHGs as client result in wider outreach, lower transaction cost and much lower risk cost for the banks. क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर छोटी छोटी सेविंग्स पुअर्स के पास हैं, वो बड़ा मिलके एक कोई फाइनेंशियल रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एसएचजी एज अ क्लाइंट दे हैव गुड अमाउंट ऑफ आउटरीच टू डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स. They can lower the cost also because they are working in groups, so the things are divided among the group in terms of financial management, and then much lower risk cost for the banks. और इसके वजह से रिस्क भी जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, क्योंकि एसएचजीज नाबार्ड ने बैंक के साथ, रीजनल रूरल बैंक के साथ लिंक करे हुए हैं। तो जो भी एसएचजी में पैसे परकोलेट या एक्यूमुलेट होते हैं, वो काफी हद तक बैंक्स भी उनको रखते हैं और बैंक्स उसमें से उनको फाइनेंशियल सर्विसेज भी अवेल करवाते हैं। सो क्रिएशन ऑफ कॉमन फंड बाय कंट्रीब्यूटिंग स्मॉल सेविंग्स ऑन रेगुलर बेसिस, इसके लिए हम कहते हैं कि इट इज ये क्या है, ये क्रिएशन ऑफ कॉमन फंड है लोगों के द्वारा, और स्मॉल स्मॉल सेविंग्स इसमें रेगुलर बेसिस पे आती है। फ्लेक्सिबल डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ वर्किंग, एक तरह से ये बहुत ही आसान और फ्लेक्सिबल मोड है जिसमें डेमोक्रेटिकली, मतलब एक तो वॉलंटरी एसोसिएशन जो बन जाता है वुमेन का, उसके बाद डेमोक्रेटिक उसका सिस्टम होता है वर्किंग का, मतलब लोगों में ये एक तरह से इट इज फॉर पीपल बाय पीपल ऑफ पीपल. Loaning is done mainly on trust with a bare documentation and without any security. और लोन जो क्रिएट, इसमें से जो फंड क्रिएट किया जाता है जिसको लोन के तहत दिया जाता है, वो मेनली ट्रस्ट पे एंड विथ बेयर डॉक्यूमेंटेशन एंड विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब कोई फॉर्मल लोन देते वक्त प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है। पेपर वर्क जितना ज़्यादा टीडियस और हेक्टिक माना जाता है बैंक के लोन केस में, बैंक लोन अवेल करने के केस में वैसा नहीं होता है। कोई गारंटी और सिक्योरिटी के बिना भी, कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना भी ये पैसा औरतों को, ज़रूरतमंद औरतों को दिया जाता है। अमाउंट्स लोन्ड आर स्मॉल, फ्रीक्वेंट एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो क्योंकि जो लोन पे दिए जाते हैं अमाउंट वो भी बहुत छोटे तौर पे और फ्रीक्वेंसी इनकी अच्छी होती है, एंड दिस इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। डिफॉल्ट्स आर रेयर मेनली ड्यू टू ग्रुप प्रेशर। डिफॉल्ट या बैड डेट्स या जो लोग पैसा खा जाते हैं, जो पैसा नहीं भर पाते हैं टाइम पे, जो फंड्स जिनको लोन पे दिए जाते हैं वो बराबर से इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं दे पाते हैं, वो बहुत कम होता है, क्योंकि ग्रुप में ये सब लोग काम करते हैं। ग्रुप का हमेशा प्रेशर लगा ही रहता है रिलेटिंग टू दी सेफ यूज ऑफ फंड्स। एंड पीरियडिक मीटिंग होती है नॉन ट्रेडिशनल सेविंग्स के तौर पे, मतलब जैसे एक तो इनके जो सेविंग्स हैं उसके ऊपर टाइम टू टाइम पीरियडिक मीटिंग्स भी होती हैं। तो ऐसे केस में ये एक तरह से कह सकते हैं कि वर्किंग प्रोसेस है फॉर many SHGs altogether which are functioning in rural areas. नीड एंड सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें कि ये क्यों ज़रूरी है और इसका फ़ायदा क्या है रूरल डेवलपमेंट में, तो सबसे पहला
to mobilize resources for individual members for their collective economic development. तो जो भी मेंबर्स इसका पार्ट हो जाते हैं, पार्टिसिपेंट हो जाते हैं, ये उनके लिए मोबिलाइज करता है रिसोर्सेस, उनके लिए जो पैसे हैं उनको इकट्ठा करता है, उन मेंबर्स को वो सुविधा देता है कि वो पैसे अच्छे से यूज़ कर सकें। और इसके वजह से, क्योंकि इसके तरफ से काफ़ी सारे बिजनेस डेवलप होते हैं छोटे मोटे, तो दिस रिजल्ट्स इन collective development of people, and we can say that earning propensity increases with SHGs to uplift the living conditions of the poor। ये जो भी पुअर लोगों की, रूरल पुअर की जो लिविंग कंडीशंस है उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि रूरल पुअर हम लोग ने देखा है, दे आर रिलक्टेंट टू गो टू बैंक एंड take loans, they don't have that much awareness to follow different procedures and avail themselves the benefits of different schemes। इसके लिए जो voluntarily women इकट्ठा पैसा करते हैं उसमें से ही इन लोग पुअर लोगों का काम चलता है। तो एक तरह से इट uplift the living conditions of the poor। to create a habit of savings, utilization of local resources, एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो भी जितना भी लोकली पैसा कमाया जाता है उसको ये बराबर से सेफ डिस्पोजल में, सेफ यूसेज में लाता है और लोगों में एक हैबिट ऑफ सेविंग को इनकलकेट भी करता है। तो इसके ऐसे केस में SHGs आर वेरी वाइटल, यू कैन से facility or the service which inculcates the habit of saving among rural poor। to mobilize individual skills for group interest, yes, वुमेन में लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, क्योंकि वो अपना एसोसिएशन बना के उसको ओव करते हैं, रन करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो खुद के इंडिविजुअल स्किल्स जो है, इवन लोन मिलने के बाद कुछ औरतों को अपने बिजनेस करने का मौका मिलता है, तो इंडिविजुअल स्किल्स जो है वो भी एनहांस होते हैं। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट राइट, यस, ये भी एक तरह से सही है, क्योंकि अपना हक हमें मालूम पड़ता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है अपने हक से रिलेटेड, तो हमें मालूम होता है कि हमने कितना पैसा दिया है और हमें उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है, एंड वी कैन ऑल्सो बी दी बेनिफिशियरी ऑफ SHG फंड। टू असिस्ट दी मेंबर्स फिनेंशियल एट द टाइम ऑफ नीड, और जो मेंबर्स होते हैं इसके SHG के, उनको टाइम टू टाइम असिस्ट करना फॉर द क्वालिटी लोन्स विच इज अवेलेबल टू देम। सो जब भी ज़रूरत होगी, नॉट ओनली फॉर बिजनेस पर्पज बट ऑल्सो फॉर रूरल एरियाज में देखा गया है, फॉर अदर प्रोडक्टिव पर्पज लाइक फार्म लैंड्स को रिनोवेट करना, या उसमें इक्विपमेंट्स खरीदना, या फिर असेट्स को ही परचेज करना फॉर विलेज वेल्स बनाना खुद के एरिया में, प्रेमाइसेस में, या इवन फॉर दैट मैटर पर्सनल यूज लाइक शादी वगैरह या प्रॉपर्टी खरीदना। तो ये भी अगर टाइम ऑफ नीड आएगा तो मेंबर्स को फाइनेंशियली इसमें से लोन लेने की सुविधा है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये तो बहुत रिसर्च हुआ है इस पे कि हाउ SHG एंड माइक्रो फाइनेंसिंग आर एक्चुअली रिजल्टिंग इनटू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड ब्रिंगिंग इन दी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन दी कंट्री। यस, हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज ये महिला बचत गट के जो पैसे हैं ये आगे चल के लोन के तहत दिए जाते हैं, और लोन्स खासकर यूटिलाइज किए जाते हैं अपना वेंचर सेटअप करने के लिए। तो ये स्मॉल स्केल पे ही सही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को रिजल्ट करता है। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, एनालाइज एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन द ग्रुप्स, यस, ये भी हम कह सकते हैं कि जितने भी ग्रुप्स से रिलेटेड समस्याएं हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनको ये बराबर से एनालाइज करके उस हिसाब से स्मॉल सेविंग्स भी पॉकेट के हिसाब से लोगों के क्षमता के हिसाब से ये बनाता है, और उसमें से सॉल्यूशंस बनाता है लोगों के लिए जिन लोगों को समस्याएं हैं। टू एक्ट एज अ मीडिया फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, हमने पढ़ा है एग्रीकल्चरल बैंक्स में, RRBs में, कि वो बहुत हद तक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज को कैटर करते हैं। वैसे ही SHG महिला बचत गट भी जो है वो एक तरह से मीडियम है फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सच विलेजेस, बिकॉज दे वर्क हैंड इन हैंड विद द गवर्नमेंट, विद द बैंक सिस्टम, with all kinds of entrepreneurship development projects, wherein the financing is also
इन्वॉल्व। टू डेवलप लिंकेजेस विद द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एनजीओ, ये भी बोल सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी सारे विलेजेस में ये SHGs टाई किए जाते हैं, लिंक किए जाते हैं एनजीओज के साथ। तो एनजीओज भी जो हैं इसमें से बराबर से रिसोर्सेज देने लेने का जो प्रिंसिपल है उसमें आ जाते हैं, और एनजीओज के साथ टाई अप करके इनका मेन मकसद यही है कि जो भी सुविधाएं हैं जो इन्हें बराबर प्राप्त नहीं होती है एनजीओज इनको प्राप्त करवाते हैं, और SHG का एक्चुअली एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है। दे टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, काफी महिला बचत गढ़ और SHGs का भी जो रोल है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है, वो ज़्यादा एडवांस हो गया है, क्योंकि ये रूरल पुअर के लिए, रूरल वुमेन के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी चलाते हैं आजकल। इनको बैंकिंग का भी नॉलेज देते हैं, इनको कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्म्स भरने का भी ट्रेनिंग सेशंस चलाते हैं। कहीं कहीं पे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है बाय कनेक्टिंग SHGs विद देम। टू हेल्प इन रिकवरी ऑफ लोन्स, यस ये तरह की क्वालिटी भी एक तरह से इंकलकेट करता है वुमेन में, बिकॉज दे नो दैट दिस इज देयर ओन created fund, and they also work for recovery of loans to gain mutual understanding, develop trust and self confidence। क्योंकि इन सब से SHG से इतना सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों का स्तर अपलिफ्टमेंट हो रहा है, और उनकी पावर्टी, इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी को ये रिजल्ट करता है, एक तरह से खुद के उद्योग करने के साधन उपलब्ध करवाता है, एनजीओज को टाई अप करवाता है। तो ऐसे केस में ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों में बिल्ड हो ही जाता है, और वो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं जब भी वो जुड़े हुए होते हैं एक SHG के तहत। टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज, वुमेन रूरल पुअर वुमेन में ये लीडरशिप क्वालिटीज भी इंकलकेट करता है। टू बिल्ड अप टीम वर्क, ये उनको एक टीम होके काम करने में मदद करता है और अच्छी टीम्स बिल्ड करता है, बिकॉज वुमेन दे फॉर्म एन एसोसिएशन एंड दे वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन ओनली। टू यूज इट एज इफेक्टिव डिलीवरी चैनल फॉर रूरल क्रेडिट, क्योंकि मैंने कहा कि SHG इसको लिंकेज किया गया है नाबार्ड प्रोग्राम्स के थ्रू डिफरेंट बैंक्स के साथ। तो एक तरह से एक SHG जो है जब भी बैंक्स के साथ लिंक हो जाता है तो बैंक और भी फाइनेंशियल सर्विसेज देने स्टार्ट हो जाती है रूरल क्रेडिट के लिए। ये एक बहुत अच्छा डिलीवरी चैनल भी है थ्रू SHG अलोन ऑल्सो एंड थ्रू लिंकेज ऑफ बैंक्स ऑल्सो। रूरल डेवलपमेंट में इनका जो सहयोग है वो कैसे देखा जाता है, तो इन ऑर्डर टू change the face of socio-economic scenario, micro enterprises SHGs are playing a wonderful role in self-employment by raising the level of income and standard of living of rural people। तो एक तरह से जो भी रूरल एरियाज हैं उनमें रोजगार और वेतन का स्तर जो है वो बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो छोटे मोटे काम करने वाले आर्टिसंस या छोटे मोटे बिजनेसेस, उद्योग और महिला बचत गट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, और इनका बहुत अच्छा रोल देखा गया है इन डेवलपिंग द रूरल एरियाज इन सोशो एंड इकोनॉमिक स्पीयर्स। सो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छे हो गए हैं, लोग उद्योग करना भी स्टार्ट करे हैं और इनका लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है। In this framework, one of the most vital aspects of rural self-employment is the formation of SHGs, which is a valuable investment in human capital through training and capacity building measures। इसी फ्रेमवर्क में, इसी SHG के प्रोसेस के तहत सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बिकॉज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खुद का उद्योग स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना और उसमें से अर्न करना, तो एक तरह से SHG बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इसमें, क्योंकि ये एक तरह से ट्रेनिंग भी दे रहा है, आपकी कैपेसिटी भी बिल्ड कर रहा है SHG, जिसके वजह से विन विन सिचुएशन दोनों साइड से हो रही है। एक साइड से आपके स्किल्स भी एनहांस हो रहे हैं वुमेन के, दूसरे साइड से उनको बिजनेस करने के लिए पैसा भी मिल रहा है थ्रू SHG। ये कुछ केस स्टडीज हैं, केस एग्जांपल्स हैं, फ्रॉम डेयरी टू मैकेनाइज फार्मिंग, वीविंग, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, मशरूम कल्टीवेशन,
रूरल इंडिया हैज बीन बिजी सेटिंग अप माइक्रो एंटरप्राइजेस बाय फॉर्मिंग एसएचजीज। तो एक तरह से जितने भी बिजनेसेस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये सब बिजनेसेस और न जाने कितने बिजनेसेस रूरल इंडिया में फ्लरिश हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है पॉसिबल? क्योंकि एसएचजी का जो मेंबर्स का सेविंग है वो इसमें यूटिलाइज होता है। द ग्रुप मेंबर्स यूज कलेक्टिव विजडम, peer pressure to ensure appropriate use of funds and its timely repayment। तो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक तरह से इकट्ठे होके अपना अच्छे से विजडम यूटिलाइज करते हैं, अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं, और इसके वजह से सब लोग मिलके जब ये नॉलेज अप्लाई करते हैं तो एक साउंड बिजनेस भी स्थापन करते हैं, और इसका फंड से जो पैसा दिया जाता है किसी को, उसका प्रॉपर यूज भी होता है और उसका टाइमली रीपेमेंट भी होता है। These are informal groups in nature where members come together towards collective action of for a common cause। क्योंकि ये एक तरह से आज भी इनफॉर्मली वॉलंटरीली ऑर्गेनाइज्ड ये है, संस्था है। तो ऐसे केस में मेंबर्स जो हैं वो आपस में एक साथ मिलके इसके बारे में डिसीजन लेते हैं, तो इसमें कोई पॉलिटिक्स या कोई फॉर्मल प्रोसीजर जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। The common need is meeting their emergent economic needs without depending on external help। एक प्रॉपर अगर इसका फ्रेमवर्क अगर हम देखेंगे तो ये स्थापन ही इसके लिए किया जाता है क्योंकि इनकी जो अर्जेंट या इमरजेंसी नीड्स है उसके लिए उनको किसी और पे निर्भर नहीं होना पड़े। सो एसएचजी मूवमेंट इज सपोज टू बिल्ड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस ऑफ रूरल पुअर। एक तरह से एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आत्मनिर्भरता सिखाई जाती है औरतों को, रूरल औरतों को। ओवरकम मिसयूज एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस। पैसों का जो मिसयूज होता आया है काफी सारे अनअवेयरनेस की वजह से, उसको ये ओवरकम करता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है वुमेन में। हु आर, जिन लोगों को हमने देखा है रूरल वुमेन जो है वो बहुत ही अंडर प्रिविलेज जो बैकग्राउंड से आती हैं, उनको जब भी सोशो इकोनॉमिक इंक्लूजन नहीं मिल पाती है तो एसएचजीज समर्थ हैं इनको सोशो इकोनॉमिक इंक्लूड करने में इन फाइनेंशियल एरियाज एंड एस्पेक्ट्स। क्या क्या एम्पावरमेंट होते हैं एसएचजीज के थ्रू? तो अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू चेंज द कंडीशन ऑफ वुमेन socially and economically। Once socio-economic experiment is achieved would have implications on the overall development of women। SHG enable economic, social and we can say psychological empowerment of women। तो ऐसे केस में जब भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या एम्पावरमेंट को ये कैटर करता है, तो हमारे पास इकोनॉमिकली वुमेन एम्पावर हो जाती हैं, सोशली वुमेन एम्पावर हो जाती हैं, पॉलिटिकली हो जाती हैं, मतलब अपना मत रखना, अपना डिसीजन खुद लेना, और साइकोलॉजिकली भी एम्पावर हो जाती हैं। तो कैसे होती हैं इसके बारे में हम लोग वन बाय वन देखते हैं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मतलब उसका खुद का स्टेटस इन सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स की वजह से, इनकम जनरेट होने की वजह से वो इंक्रीज होता है, और एक तरह से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी आगे चल के सेक्सुअल इक्वालिटी और इंक्रीज इन वुमेन्स इनकम डायरेक्टली जाता है, बेनिफिट करता है फैमिली वेलबींग को। क्योंकि अगर आत्मनिर्भर होगी औरत तो वो डिसीजंस भी ले पाएगी, और एक तरह से हम कहते हैं जेंडर डिस्पैरिटी भी इसमें से लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में भी अगर हम उसकी बात करें तो रिड्यूस होती है, बिकॉज धीरे धीरे वो खुद ही इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज में पार्ट लेना स्टार्ट करती है। तो एक तरह से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो रिजल्ट करते हैं इनटू इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सोशल एम्पावरमेंट, तो मैंने जैसे बात किया सोशल इंक्लूजन, तो एक तरह से एसएचजी वुमेन को पार्टिसिपेंट बनाती है, डिसीजन मेकर बनाती है, बेनिफिशियरी बनाती है, तो वो सोसाइटी का धीरे धीरे हिस्सा बनने लगती है। तो किन क्षेत्रों में? सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में, इकोनॉमिक वे से, और कल्चरल स्पीयर्स ऑफ लाइफ में। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन as participants, as decision maker,
as beneficiary in the society, democracy, economics, and cultural spheres of life. So what we can say that it ensures the equality of status of women in society. Then if we talk about political empowerment, so SHGs are seen as the catalyst for active, articulate and organized citizenry, acting on the range of issues, holding panchayats accountable in terms of use, production and distribution of public resources for common public good. SHGs enables women to develop their communication skill, to speak at the Gram Sabha public meetings, etc. SHG functions through its regular meetings where members perform transactional activities and discuss over different related issues. Social mobilization through SHG is inevitable for political and एम्पावरमेंट. तो एक सिंपल मतलब इसका ये है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, पॉलिटिकली आप एम्पावर कभी होंगे जब आप अपना मत रख पाओगे, आप अपनी राय दे पाओगे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ रूरल एरिया में. तो ऐसे केस में एसएचजी जो है वुमेन में लीडरशिप क्वालिटीज और कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करता है, जिसके वजह से वो ग्राम सभा पंचायत में डिसीजन मेकर होके या फिर अपना वॉइस करती है ओपिनियन उनके पब्लिक मीटिंग्स में. एंड एक तरह से रेगुलर मीटिंग होती है इधर इसमें एसएचजी में, और इसमें कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो अलग अलग इश्यूज पे औरतों को समझ भी आ जाती है. और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इट गिव्स यू इक्वल स्टेटस ऑफ बीइंग अ सिटीजन्स ऑन द रेंज ऑफ इश्यूज होल्डिंग पंचायत्स, so accountable in terms of use production. तो एक तरह से you become the part of the system altogether, because you can also participate in their process, in their you can say the decision making areas. You can also speak you can voice your opinion, and in rural area it is very much necessary that women now come on the par, then only we can say the development can take place. So political empower karta hai SHG. Then we have psychological empowerment. So when we talk about psychological empowerment, when woman is getting so much of you can say benefits from SHG, it is uh, I'll be failing in my duty if I say that it does not build the confidence in the minds of rural women. So even the your personality outlook changes, your confidence increases, and you can be successful in your day to day life. So this results in psychological empowerment also. Now, considering the portion part which we have, the syllabus which we have, obviously we have to see the syllabus, how we have been doing so far, everything relating to the rural marketing, what we have discussed in previous lectures. So we are doing what we have, we are into eighth chapter now altogether. Now this particular chapter, if we try to analyze the objectives and agenda of this particular chapter, what we will realize that so far yeah, we have done agricultural marketing, and in this context we have always also discussed the importance of agricultural marketing. Then we have seen prospects and issues of agricultural marketing. Cooperatives, yes, this is the thing which we were discussing. Cooperative societies altogether we have discussed in previous lectures. Now we have self-help groups in rural marketing. So in self-help groups, we have done through challenges that how self-help groups play a major role in poverty alleviation in rural areas. This thing we have justified through our slides. Also we have done देयर फंक्शंस, अभी अभी हमने उसका नीड इम्पोर्टेंस और फंक्शंस भी किया, ये सब हमने अपने स्लाइड्स में देखे. और एम्पावरमेंट थ्रू एसएचजी किया, जिसमें वी हैव डिस्कस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट. सो if we see economic empowerment,
as SHG resolved the issue of unemployment in rural areas by generating employment opportunity that help women to make her economically independent and bring equality, translate their income directly into the family well-being. So when we talk about how social empowerment is also done, so in under social empowerment, it improves the equality status by bringing women in the mainstream of the decision making. So it ensures equality status of women in democratic economy. ये सब हमने discuss किया already. It changes the view of society in rural areas. Most of the women remain in the home as she is not permitted to go outside and talk with an outsider. This was the scenario which was observed in rural areas. But after advent of SHGs, we can say that SHG motivate rural people to join the group and make aware that both men and women have equal role in the society without supporting each other. So this is social empowerment. We have political empowerment also. So when we talk about political empowerment, we have all altogether seen that yes, this is worth noting that after 73rd Amendment Act, 33% of reservation for women is done in panchayats also. So this was the amendment is 73rd and 74th amendment when we talk about the Zilla Parishad Panchayat, all will Gram Sabha, where we have observed that 33% of the seats are reserved for women. And we can say that after SHG, that SHG has inculcated the decision making, leadership quality, and women. So what is happening in with the use or the advent of SHG, they become political empowered also because they learn to speak in the public gatherings. And then we have psychological empowerment. Now this psychological empowerment, if we talk about, I have already told you that through slides that how the confidence and personality outlook enhances because automatically you get your own rights, and this creates confidence among members and encourage them to face any critical situation courageously. Yes. So, what questions will be expected? One, what are the functions of SHG? Second, explain the empowerment concept of SHG. How the SHG helps in empowering rural poor, and also describing the role of cooperatives and self help groups in rural marketing. So, if we see slides, what we have done so far, we have all sort of things which we have discussed in the lecture. We have concept of SHG. Meanwhile, while doing the concept also, we would realize that different questions comes in the form of either in the form of long question or short note. Obviously, we have to write about the concept of SHG and what is its context or relevance in rural areas. So both these slides will be useful. Then we have seen the functions and need and significance. So we have n number of points given here. We can utilize any 5 6 points in elaborating the functions of SHG as such. Then we have rural development and SHG. So always it is better to talk about the rural India. What is the scenario there? What is the changes which has been observed in rural development? The likes rural self-employment, income generation, bank linkages, all those things we can talk. And lastly, the question which is expected is the empowerment through SHGs. So how we can divide this empowerment of SHG? We can have economic empowerment, we can have social empowerment, we can have psychological empowerment, and political empowerment. So this way, this entire chapter relating to
agricultural marketing, we have this particular context which we have discussed today, role of SHG in rural marketing.